नमस्कार मित्रों, मैं चेतन परमार आप सभी का मेरे YouTube चैनल के ऊपर स्वागत करता हूं। आज सी शार्प ट्यूटोरियल इन हिंदी सीरीज के अंदर में आज हम डिस्कस करने वाले डिसीजन स्ट्रक्चर्स के बारे में। कितने टाइप के डिसीजन स्ट्रक्चर्स अवेलेबल है इन सी शार्प प्रोग्रामिंग के अंदर में। हर एक को हम सिंटैक्स और एग्जाम्पल के साइड से देखेंगे ये वीडियो सीरीज के अंदर में। ठीक है, अब शुरू करते हैं आज का वीडियो। लेट्स स्टार्ट। सबसे फर्स्ट कितने टाइप के डिसीजन स्ट्रक्चर्स अवेलेबल है सी शार्प प्रोग्रामिंग के अंदर में। सबसे फर्स्ट इफ स्टेटमेंट, इफ एल्स स्टेटमेंट, इफ एल्स इफ स्टेटमेंट, समटाइम इज आल्सो नोन एज अ ladder, if ladder, then switch statement, then ternary operator statements like a shorthand if else, then nested if statements and nested switch statements, which is ultimately nested statements of if and switch statement. शुरू करते हैं धीरे धीरे वन बाय वन हर एक के बारे में। सबसे फर्स्ट इफ स्टेटमेंट के बारे में। सिंटेक्स वाइज देखा जाए तो इफ स्टेटमेंट्स कुछ इस फॉर्म में दिखा देता है। इफ देन कंडीशन and then if this condition is true, so this true part block will be executed. Okay, let's see one example. Let's say here दो वेरिएबल आपको जो दिखाई दे रहे हैं। सबसे फर्स्ट x वेरिएबल एंड y वेरिएबल। x value contain 20 and y value contain 18. Now x is greater than y. That means यहाँ पे क्या कर रहा है, x की वैल्यू y से कंपेयर कर रहा है। That means it is a condition. This is a condition. If this condition is true, then this block will be executed. So in our case, x value is 20, okay, and greater than y value is 18. So definitely 20 is greater than 18. So condition is true. That's why it will display x is greater than y as an output. Okay. Now next is the if else statement. In if else statements is the advanced forms of if statements. Suppose the condition is false, then what you have to do? So that section will be arise in a else section. So you can see here, this is a if condition. If condition is true, then that block will be executed. If this condition is false, then else portion block will be executed. Okay. Now एग्जाम्पल के थ्रू हम इसको समझने की ट्राई करते हैं। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, अब उसी एग्जाम्पल को थोड़ा मॉडिफाई कर दिया है मैंने। x की वैल्यू 20, y की वैल्यू 18। ओके, नाउ अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं, अगेन कंडीशन चेक कर रहे हैं। x इज ग्रेटर देन y, दैट मींस 20, x की वैल्यू 20 ग्रेटर देन 18। if it is true, then this block will be executed, otherwise this block will be executed. So in our conditions 20 is greater than y, definitely our condition is true, so it will be display x is greater than y. Okay, now suppose x value is equal to 100, okay, and y value equal to 200. Now in that case this 100 is greater than 200, so these conditions here, so x value will be replaced by 100 is greater than y value will be replaced by 200. So in that case this condition is false, so ultimately this portion will be executed, which is a y value is greater than x, which is a 200 is greater than 100. Okay, so this is a if else statement. But in if else statements, if you are providing a multiple condition, then it's known as a if else ladder. जैसे आप यहाँ पे सिंटेक्स में देख सकते हो, सबसे फर्स्ट नॉर्मल इफ, this is the first condition, this condition is true, then this block will be executed. Else if, second condition, again if this condition is true, then this block will be executed. Same way you can give a multiple condition in if block. Okay, suppose कोई भी कंडीशन ऊपर की एग्जीक्यूट या ट्रू नहीं होती है, in that case this else block will be executed and this statement will be fired. Okay, now हम एग्जांपल के थ्रू इसको समझने की ट्राई करते हैं। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल मैंने बताया हुआ है, जैसे देख सकते हो आप, एक x की वैल्यू है which value is 20,
देन उसी x की वैल्यू को हम डिफरेंट वैल्यू के साथ आप कंपेयर कर रहे हैं। तो सबसे फर्स्ट मेरी कंडीशन क्या है कि x की वैल्यू 10 से छोटी है या नहीं, दिस इज माय फर्स्ट कंडीशन। सो डेफिनेटली यहाँ पे हम देख सकते हैं 20 इज लेस देन 10, नो, इट्स कंडीशन इज फॉल्स, दैट मीन्स ये ब्लॉक में वो नहीं जाएगा। ओके, नाउ अब कहाँ जाएगा वो, सीधा पॉइंटर एल्स इफ के पास जाएगा यहाँ पे। अब यहाँ पे वो चेक कर रहा है अगेन x लेस देन 20, क्या x की वैल्यू सेकेंड कंडीशन में चेक कर रहा है 20 से कम है, नहीं वो 20 से कम नहीं है, वो एग्जैक्टली 20 ही है। दैट मीन्स कि ये कंडीशन भी अभी क्या हो रही है, फॉल्स हो रही है। सो अगेन इट विल मूव ऑन नेक्स्ट कंडीशन, बट नेक्स्ट कंडीशन कोई अवेलेबल नहीं है, दैट्स व्हाई इट इज गोइंग इन एल्स पोर्शन एंड इट विल बी डिस्प्ले मैसेज x इज मोर देन 20। ओके, क्लियर? नाउ सपोज x value is right now let's say 5. So in that case, the first condition is what? X is less than 10. That means the 5 is less than 10. Okay. So यहाँ पे देख सकते हो कि 5 is less than 10. Yes, definitely it's true. So in that case, it will display X is less than 10. So in this format, if else if ladder will be executed or performed. Clear? Now, next is a switch statement. So what is this exactly switch statement? So आप देख सकते हो सिंटेक्स के अंदर में डिफरेंट एक्सप्रेशंस के साथ बताया हुआ है। सो स्विच एंड एज अ पैरामीटर यू कैन पास एक्सप्रेशन। ओके, देन केस इट विल बी वर्क विद डिफरेंट केसेस। सो केस 1, केस 2, ऐसे नंबर ऑफ केसेस आप दे सकते हो एंड लास्ट में डिफॉल्ट स्टेटमेंट। सो कोई भी केस स्टेटमेंट यदि एक्सप्रेशन के साथ मैच करता है so that particular block will be executed, otherwise second block will be executed. Same way यदि कोई भी केसेस मैच नहीं करता है then default block will be executed. Okay, now see one example here. जैसा मैं यहाँ पे जो एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ वो डे के लिए है, आप डे का नंबर दे रहे हो और उसी के बेस के ऊपर वो आपको डे का नाम बताएगा कि कौन सा आज डे हुआ है। जैसे यहाँ पे डे की वैल्यू हमने प्रोवाइड की है 6। ओके, नाउ स्विच केस में यही डे वेरिएबल को मैंने पास कर दिया एज अ एक्सप्रेशन। नाउ हर केस में आप देख सकते हो एक न्यूमेरिक वैल्यू है, जहाँ से यहाँ पे 1 है, 2 है, 3, 4, 5, 6 एंड 7। यदि किसी भी वैल्यू के साथ वो डे मैच होता है दैट केस विल बी एग्जीक्यूटेड। सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले केस 1 के पास जाएगा, चेक करेगा क्या इसकी डे की वैल्यू 1 है, नहीं ये तो 6 है। 2 के पास गया, मैच हुई, नहीं। थर्ड के पास गया, नहीं। फोर्थ के पास गया, नहीं। फिफ्थ के पास गया, नहीं। नाउ 6, सो 6 के पास जैसे जाता है डे इज मैचिंग, दैट मीन्स वो बताएगा कौन सा राइट लाइन आज हुआ है सैटरडे। ओके, एंड ब्रेक स्टेटमेंट के थ्रू वो सीधा स्विच केस से बाहर आ जाएगा, बाकी के पीछे के किसी भी केसेस को ना तो वो कंपेयर करेगा नॉट इवन वो एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है, इनकेस आप यहाँ पे यदि आपने डिफॉल्ट स्टेटमेंट भी लिखा होता तो यदि कोई भी केसेस मैच नहीं करता है इन दैट केस द डिफॉल्ट स्टेटमेंट विल बी एग्जीक्यूटेड। ओके, नाउ टर्नरी ऑपरेटर्स, या फिर आप बोल सकते हो इट्स अ शॉर्ट नोटेशंस ऑफ इफ स्टेटमेंट्स। जैसा आप यहाँ पे देख सकते हो सिंटेक्स के अंदर में कंडीशन, दिस ऑपरेटर and this operator, these both operator are special for ternary operators. If this condition is true then this block will be executed, if this condition is false then this false part will be executed। जैसा आप यहाँ पे देख सकते हो दो वेरिएबल की वैल्यू हमने चेक करवाई है, x की वैल्यू 20 है, y की वैल्यू 18 है, और एक वेरिएबल रखा हुआ है मैक्स अंडरस्कोप एनो करके जहां पे हम मैक्सिमम वैल्यू स्टोर करने वाले हैं। ठीक है, सो नाउ यहाँ पे हमारी कंडीशंस क्या है, x इज ग्रेटर देन y, दैट मींस x की वैल्यू यदि y से बड़ी है, तो यदि वो y से बड़ी है दैट मींस कि क्या हुआ है, कंडीशन ट्रू होती तो x बड़ा है, दैट्स व्हाई यहाँ पे क्वेश्चन मार्क्स के बाद लिखा है x एंड कोलन के बाद उसकी फॉल्स कंडीशन दैट मींस y। ओके, सो अल्टीमेटली जो हम डेटा जो प्रोवाइड कर रहे हैं उसके हिसाब से ये पूरा एक्सप्रेशन इस फॉर्म में जनरेट हो जाएगा, x की वैल्यू हुई 20 इज ग्रेटर देन y, दैट मींस y की वैल्यू कितनी हुई 18, सो हम लिख देते हैं 20 इज ग्रेटर देन 18। ओके, देन क्वेश्चन मार्क्स, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, दिस इज a 20 otherwise 18। ओके,
इस फॉर्म में ये पूरा वैल्यू को रिप्लेसमेंट कर देगा और हमारी कंडीशन के हिसाब से क्या होगा 20 इज 8 मोर देन 80 यस ट्रू इट्स ट्रू और ट्रू जैसे होती है दैट मींस दिस ब्लॉक विल बी एग्जीक्यूटेड और दिस 20 विल बी स्टोर्ड इनटू मैक्स अंडरस्कोर एनो वेरिएबल और अल्टीमेटली स्क्रीन के ऊपर आपको डिस्प्ले हो जाएगा मैक्स अंडरस्कोर एनो वेरिएबल ओके नाउ नेक्स्ट इज द नेस्टेड इफ स्टेटमेंट नेस्टेड इफ स्टेटमेंट्स का मतलब ये होता है कि किसी भी इफ ब्लॉक के अंदर में आप दूसरा इफ ब्लॉक क्रिएट कर रहे हो सो ब्लॉक इनसाइड अनदर ब्लॉक्स इज नोन एज अ नेस्टेड इफ स्टेटमेंट्स सिंटेक्स वाइज देखा जाए तो कुछ आपको इस फॉर्म में दिखाई देता है जहां पे ये आपका फर्स्ट ब्लॉक है और ये आपका सेकंड ब्लॉक है ये फर्स्ट ब्लॉक का स्कोप यहां तक का है इसके अंदर का इनर ब्लॉक का स्कोप यहां तक का है जो ब्लॉक आपको यहाँ पे फर्स्ट दिख रहा है दिस इट्स नोन एज द आउटर ब्लॉक दिस इज नोन एज द आउटर ब्लॉक एंड जो आपको यहाँ पे दिख रहा है वो है इनर ब्लॉक ओके इट्स नोन एज द इनर ब्लॉक क्योंकि वो इसी आउटर ब्लॉक के अंदर में है सो एक आउटर ब्लॉक के अंदर में मल्टीपल इनर ब्लॉक हो सकते हैं सो दिस इज नोन एज अ नेस्टेड इफ स्टेटमेंट्स लेट्स से हम एग्जांपल के थ्रू उसको समझने की ट्राई करते हैं जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल बताया हुआ है कि a इक्वल टू 10 b इक्वल टू 20 ना अब हम चेक कर रहे हैं यदि a की वैल्यू 10 है एग्जैक्टली देन आपको इसी ब्लॉक के अंदर में जाना है और उसके बाद चेक करना है कि b की वैल्यू 20 है तब उस ब्लॉक को एग्जीक्यूट करवाना है ठीक है सो लेट्स हम चेक करते हैं सो फर्स्ट कंडीशन इज व्हाट a इक्वल टू 10 यस ट्रू क्योंकि हमारे हिसाब से a की वैल्यू 10 ही है सो ये ब्लॉक ट्रू हुआ जैसे ट्रू होता है हम दूसरे ब्लॉक में जाएंगे यहाँ पे लिखा हुआ है b इक्वल टू 20 दैट मींस b की वैल्यू 20 है यस b की वैल्यू भी 20 है दैट मींस ये कंडीशन भी ट्रू हुई ये कंडीशन भी ट्रू होती है जैसे दोनों कंडीशन ट्रू हो गई ये लास्ट वाली एग्जीक्यूट हो जाएगा लाइन और डिस्प्ले करेगा वैल्यू ऑफ a इज 10 एंड b इज 20 ओके नाउ सपोज यदि मैं वैल्यू को मॉडिफाई करता हूं लेट्स से b की वैल्यू में करता हूं 30 a की वैल्यू हमारी एज इट इज 10 है सो उस केसेस में क्या होगा कि यहाँ पे ट्रू हो गया सो दैट मीन्स वो इनर पार्ट में चला गया अब यहाँ पे क्या कर रहा है वो चेक करता है b इक्वल टू 20 नो दिस टाइम b इक्वल टू व्हाट 30 सो दैट मीन्स ये कंडीशन फॉल्स हुई दैट मीन्स कि ये वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं करेगा सीधा वो बाहर आ जाएगा और सीधा आपके ब्लॉक के नेक्स्ट लाइन के ऊपर एग्जीक्यूशन स्टार्ट कर देगा which is the actually nested if statement. The next is a nested switch statement. That means कि switch inside switch. एक स्विच ब्लॉक के अंदर में आप दूसरा स्विच ब्लॉक को डाल रहे हो which is ultimately a switch nested if switch statement. जैसा आप यहाँ पे देख सकते हो ये आउटर स्विच है और उसी के अंदर में एक और स्विच डाला हुआ है which is a inner switch. Okay? Let's see एग्जांपल के थ्रू हम इसको समझने की कोशिश करते हैं यहाँ पे जो एग्जांपल हमने आगे डिस्कस किया था स्विच के अंदर में डे वाला सेम एग्जांपल को यहाँ पे रिपीट किया हुआ है सो यहाँ पे क्या किया सबसे पहले चेक कर डे की वैल्यू 2 कि डे मेरा 2 है नाउ अब मैं चेक कर रहा हूँ एक्सप्रेशन के फॉर्म में डे को पास कर दिया यहाँ पे सबसे फर्स्ट मेरा केस 1 एंड केस 2 है सो डे की वैल्यू 2 है दैट मीन्स के फर्स्ट केस के अंदर वो मैच नहीं करता है सेकंड केस के अंदर में 2 है 2 मैच किया 2 के साथ दैट मीन्स ये केस के अंदर मैच कर दिया जैसे ये केस के अंदर मैच किया मैसेज डिस्प्ले करेगा ट्यूसडे ओके और ट्यूसडे जैसे डिस्प्ले करता है नाउ अब सेकंड स्विच के स्टार्ट हो गया उसी के अंदर में अगेन उसी डे को मैंने यहाँ पे सेकंड इनर स्विच के अंदर में एज ए आर्ग्यूमेंट पास कर दिया एक्सप्रेशन वहां पे सीधा लिखा है केस 2 ओके वो 2 मैच कर गया सो मैसेज डिस्प्ले करेगा यू आर इन नेस्टेड स्विच ब्लॉक एंड ब्रेक स्टेटमेंट के थ्रू वो सीधा स्विच से बाहर आ जाएगा उसके बाद जो सेकंड केस है वो वहां से भी बाहर आ जाएगा एंड दिस वे दिस होल प्रोग्राम विल बी एग्जीक्यूटेड ओके सपोज यदि आपने डिफॉल्ट स्टेटमेंट्स कहीं पे लिखे होते तो डिफॉल्ट स्टेटमेंट भी साथ में एग्जीक्यूट हो जाते सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हुआ है तो प्लीज लाइक बटन के ऊपर क्लिक कर दीजिए आप मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और साथ में जो बेल आइकॉन दिया हुआ है बेल आइकॉन के ऊपर भी क्लिक कर दीजिए सो यदि मैं फ्यूचर में ऐसे नए वीडियो अपलोड करता हूं तो उसके बारे में आपको इंटीमेशन मैसेज मिलता रहेगा सो वंस अगेन थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे